जो परामर्श। सेज एडवाइस एक बेहतर जिंदगी के लिए हम एक काउंसलिंग पोर्टल हैं जो परामर्श के लिए 365 दिन ऑनलाइन उपलब्ध है। हम जरूरत के समय दिशा निर्देशन तथा सहयोग देने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। हमारे अनुभवी तथा सक्षम काउंसलर्स का पैनल हर वक्त सुनने, समझने और दिशा प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। सेज एडवाइस समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध संस्था है, जिसे एक ऐसे खुशहाल समाज का सपना प्रोत्साहित करता है जिसमें लोग सशक्त हों और आनंद से भरपूर जीवन व्यतीत कर रहे हों। हमारा रोज यही प्रयास है कि आपके जीवन में कम से कम तनाव और चिंता हो। जनरल परामर्श के साथ वेलनेस और लाइफ कोचिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सेज एडवाइस के लाइफ और वेलनेस कोच हर वक्त पोर्टल पर उपलब्ध हैं और आपको अपना सबसे बेहतर स्वरूप प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सेज एडवाइस का एक मूल मंत्र है कि मानवीय जीवन के सभी पहलुओं का एक लय में होना अनिवार्य है, ठीक उसी तरह जैसे ऑर्केस्ट्रा के बज रहे सभी साजों का एक सुर में होना जरूरी होता है। इसी कारण हम करियर काउंसलिंग भी देते हैं, विद्यार्थी स्कूल का हो या कॉलेज का। हमारे करियर काउंसलर्स भी बरसों का तजुर्बा और सूझबूझ रखते हैं ताकि आप सरलता पूर्वक फैसले ले सकें। वो चाहे नौकरी बदलना हो, दफ्तरी तनाव हो या कोई अहम निजी परिवर्तन जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सेज एडवाइस निरंतर प्रगति, बेहतरी और आरोग्यता की ओर आपको अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है, चाहे शरीर हो, मन या फिर आपके रिश्ते। हम आपको बाधाएं पार करने, हीन भावनाओं से लड़ने, डर, शर्म तथा अपनी मानसिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने में सहायक होना चाहते हैं, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकें। Elderly care and protecting their rights. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਪਦਾ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਦਮ, ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਆਈਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਾਈਬਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ, ਫੀਲਡ ਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਇਟਸ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈਪੀਐਸ। ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ देयर ਰਾਈਟਸ। ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਾਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਡਰਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਸਕੀਮਸ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਐਲਡਰਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਰਮਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 50% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਡਰਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰਾਡਸ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਐਲਡਰਲੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਪ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹਲੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਬੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ATM ਕਾਰਡਸ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲਡਰਲੀ ਤੇ ਵਿਮਨ ਦੀ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 112 ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਵਿਮਨ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ 181 ਤੇ ਲੌਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਰੈੱਡ ਟੈਗ ਤੇ ਬਲੂ ਟੈਗ। ਲਾਲ ਟੈਗ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਨੀਲੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਸ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਇਕ ਤੇ ਫਾਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 382 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ CM ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ADGP ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਆਫਿਸਰਸ ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਸ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 17,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 99% ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 17,000 ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਰਿਡਰੈਸਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਟਾਈਪ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ 2020 ਦੇ ਤੇ 2021 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 72 ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸੀਟੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵਸਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਲਡਰਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਮੇਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਰਟ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ मैं शिफ्ट करना चाहूँगा फोकस टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। और जब मैं अब रुख बदलूँगा मेंटल हेल्थ की तरफ तो सिलसिला काउंसलिंग की तरफ जाता है।
बहुत से केसेस में हमारे बुजुर्ग जो इस वक्त अकेले अपने घरों में बंद हैं, कई हफ्तों, कई महीनों से, कई बार अपने परिवार वालों के साथ, परिजनों के साथ और कई बार अकेले में भी हैं। तो मानसिक पीड़ाएँ हर तरह की हैं। कुछ के बारे में कंवर जी ने अभी मेंशन भी किया एंड यस इट रियली हर्ट्स टू नो अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एंड इवन सेक्सुअल अब्यूज देयर इज फाइनेंशियल अब्यूज उसके साथ साथ खाना वक्त पे ना मिल पाना, दवा ना मिल पाना या फिर अनजाने में ही कोई एल्डर ऐसा है जो आपके घर में शायद इस वक्त उत्पीड़न का शिकार है या किसी तरह की अब्यूज का शिकार है और आप चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। सो हाउ टू पिक अप दोज साइंस, हाउ टू पिक अप दोज सिम्टम्स और किस तरह आप अपने आप को और सशक्त और तैयार बना सकते हैं एल्डरली की केयर करने के लिए। इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे पास आज सेज एडवाइस से काबिल काउंसलर सुमीरा छाबड़ा गंभीर मौजूद हैं, जो बहुत बहुमूल्य टिप्स, सुझाव और जानकारी देने वाली हैं हमें। सुमीरा ने मास्टर्स की है काउंसलिंग और सोशल वर्क में और बहुत सालों से औरतों, बुजुर्गों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के ऊपर काम कर रही हैं। ये इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो शायद इनके लिए देर रात का समा हो चुका है, लेकिन शी इज़ फ्रेश एंड रेडी टू गो और जेंडर इक्वालिटी पर भी और सब वर्गों के समान अधिकारों को लेकर भी ये कार्यरत हैं। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सुमीरा को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो हमें साइकोलॉजी, काउंसलिंग और किस तरह से आज के इस मुश्किल वक़्त में जब अपने आप को इन 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 द मिडस्ट ऑफ ऑल द लॉस सँभालना मुश्किल हो गया है, एल्डरली जो वल्नरेबल हैं, उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, उनकी केयर कैसे की जाए? ओवर टू यू सुमीरा। Thank you, Indrajit sir. And first of all, welcome, नमस्ते, सत श्री अकाल, सब लोग जो अभी यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। सब आज का टॉपिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई कम अप फ्रॉम दैट फैमिली जिसमें बुजुर्ग बहुत वैल्यू किए जाते हैं। पर आजकल जो भी हम सोशल मीडिया में चीजें देख रहे हैं, लोग कैसे अपने बुजुर्गों को छोड़ आते हैं या उनकी लुक आफ्टर नहीं करते, दैट एक्चुअली ब्रेक्स माय हार्ट। सो आई नो इट्स अ वेरी टचिंग टॉपिक और बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद कुछ ट्रिगर भी लेके आए। एंड इफ यू फील लाइक कि ये टॉपिक आपके लिए कोई भी ट्रिगरिंग टॉपिक्स लेके आ रहा है, प्लीज रीच टू अस, वी आर हियर टू support you, reach to Sage Advice. And I feel without delaying, I would like to start today's topic, which is elderly care and protecting their rights. So I would like to start this with a real example, which actually motivated me to become a counselor. ये बात तब की है जब मैं अभी साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। मेरे घर के पास एक अनाथ आश्रम था। आई यूज्ड टू गो देयर बिकॉज़ मेरी दादी जो है वो नहीं रहे, तो वहाँ पे जाके मुझे ये लगता था कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और मैं लाइफ में उस जगह पे हूँ जहाँ मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं उस अपाहिज आश्रम को विज़िट करती थी। वहाँ पे एक लेडी मुझे मिली जिनको मैं बीजी बोलती थी। उनमें मुझे अपनी दादी नज़र आती थी। तो जैसे-जैसे मैंने उनको जानना शुरू किया, उनकी स्टोरी सुन के आई वाज़ सो टच्ड। उनके 4 बच्चे थे। उनमें से 2 बच्चे अब्रॉड बैठे थे और 2 बच्चे इंडिया में थे। और जब तक तो उनके हस्बैंड ज़िंदा थे, सब कुछ ठीक था। पर जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई, वो जो दोनों बहुएँ थी और बेटे थे, उनका रुख चेंज हो गया बिकॉज़ उनको जायदाद चाहिए थी। तो शुरुआत में जो उनकी छोटी वाली बहू थी, उसने बोला, "मैं आपकी लुक आफ्टर करूँगी, आप मेरे घर चलो।" और जब वो उसके साथ रहना शुरू हो गए, छोटी-छोटी बातों पे कलेश होने शुरू हो गए, मार-पिटाई शुरू हो गई बिकॉज़ बहू ये चाहती थी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके नाम पे, वो मुझे मिल जाए। तो आई फ़ील उसी टाइम जब उनके साथ मार-पीट हो रही थी, तो शी एक्चुअली लॉस्ट वन आई। आई फ़ील कुछ ऐसे हर्ट हुआ या कैसे उनकी जो आई पावर थी वो ख़त्म हो गई। बट स्टिल बिकॉज़ बच्चे हैं, शी कुडन्ट डू एट दैट टाइम कुडन्ट डू एनीथिंग एट दैट टाइम। और फिर धीरे-धीरे जो उनका बड़ा बेटा था, वो सीन में आया। उसने बोला, "आप इनके पास क्यों रह रहे हो? वो आपकी लुक आफ्टर नहीं करते, आप मेरे साथ चलो, मेरे बच्चे करते हैं।" तो वो बड़ा बेटा उनको जब अपने साथ ले गया और उसके साथ रहना शुरू किया,
थोड़े दिन तक तो बहुत अच्छे से सेवा हुई और एक दिन ऐसे ही बीजी ने बोला जी मुझे चैरिटी करनी है। आई फ़ील कामवाली की बेटी की शादी थी तो शी वांटेड टू गिव समथिंग और बेटे ने इस चीज़ का कलेश कर दिया कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो हमें क्यों नहीं देते? हमें तो बस अनाथ बना के छोड़ा हुआ है। हमने आपकी इतनी देर से दवाइयाँ की, ये की और बहुत कुछ सुनाया उनको और उसी चक्कर में वो उस कलेश में वो ज़्यादा कलेश बढ़ गया कि उस बेटे ने उस बूढ़ी औरत को घर से बाहर निकाल दिया। और वो लेडी पिंगलवाड़ा गई और उसके बाद आई फ़ील जब तक वो लेडी रही है, वो इसी अपाहिज आश्रम में रही हैं और अब आप सोचो ये कितनी बड़ी स्टोरी है जो आज भी मुझे अंदर से हिला देती है बिकॉज़ एल्डरली जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पूरी उम्र वो कहते हैं बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, 4-4 बच्चों को मिलके पालते हैं बट एंड में उनको कोई भी नहीं सँभाल रहा और अपने आखिरी टाइम पे वो अपाहिज आश्रम में हैं और बिल्कुल लवारिसों की तरह उनकी जो आखिरी टाइम गुज़रा है। सो दिस इज़ व्हाट्स टुडेज़ सिचुएशन और एल्डरली के साथ बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको और इस चीज़ के बारे में बताऊँगी कि आप इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। सो कैन आई प्लीज़ हैव नेक्स्ट स्लाइड? सो ये जो फ़ोटो है, हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है पर आई फ़ील दिस इज़ पावर एंड कंट्रोल। कोई भी जो अब्यूज़िव रिलेशनशिप है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अभी जो मैंने आपसे बीजी की स्टोरी शेयर करी, अगर आप उसको लो, उनकी फैमिली ने उनको सबसे वल्नरेबल टाइम में जब उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया, अपनी ओल्ड एज में आ गई, उस टाइम पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। और उनको उनको बिकॉज़ वो चैरिटी करना चाहती थी अपने बच्चों के साथ टाइम एन्जॉय करना चाह रही थी, उनको उस टाइम पे मजबूर किया गया कि या तो हमें प्रॉपर्टी दे दो, नहीं तो हम आपकी केयर नहीं करेंगे। सो उनको इमोशनली कंट्रोल किया गया। बच्चों को मतलब किसी भी आई फ़ील बुज़ुर्ग से अगर आप उनको पूछो कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ क्या है, वो यही बोलेंगे सानू साडे पोते-दोतियाँ बड़े पसंद है जी, बड़े प्यारे हैं। उनको अपने पोते-दोतियों से मिलने के लिए मतलब कंडीशन रखी गई कि अच्छा हमारे साथ रहो, हमारे तरीके से रहो तभी बच्चों से मिल पाओगे। एक तरीके से उनको आइसोलेट कर दिया गया जो उनके कनेक्शंस थे क्योंकि एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर में जाना और जो भी उनका सर्कल होगा उस सबको ब्रेक कर दिया। उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी और इस केस में मुझे लग रहा है बच्चे दे वर यूजिंग दैट प्रिविलेज बिकॉज़ वो ओल्ड एज हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकती, एक आँख से देख नहीं सकती। सो बेसिकली दे वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट देम फाइनेंशियली उस लेडी को और जहाँ तक मुझे याद है वो जो बीजी थी उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों ने अपने नाम लिखवा ली थी और फिर उनको अबैंडन कर दिया। वो पूरी उम्र अपनी अपाहिज आश्रम में रही हैं। सो अगेन इट्स लाइक अ एक्सप्लॉयटेशन और थ्रेट तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत बार बच्चे उनको ये चीज़ ऑलरेडी बोल रहे थे अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो तो ऐसे करो, प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, हम आपकी दवाइयाँ कर रहे हैं, हम आपको खाना खिला रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली इट शोज़ दैट इट्स नॉट अ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। इट्स मोर लाइक पावर और कंट्रोल को यूज़ करके आप दूसरे इंसान को हरास कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में बेसिकली वो सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। उसके साथ आई फ़ील जैसे कि एसएसपी मैम ने बोला सेक्सुअल हरासमेंट होती है, फिज़िकल हरासमेंट होती है। आपको ढेर सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे इंटरनेट पे जिसमें बुज़ुर्गों को मारते-पीटते दिखाया जा रहा है बिकॉज़ शायद उनसे कुछ गिर गया है या उनको कोई चीज़ चाहिए, आप उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे बट आप फ्रस्ट्रेशन में उनको पिटाई कर रहे हो। और सेक्सुअल अब्यूज़ ऑलरेडी एसएसपी मैम ने बोला है कि इट्स देयर बट येस मैनी पीपल डज़न्ट टॉक अबाउट इट बिकॉज़ इंडिया में हर चीज़ जो है उसको छुपा के किया जाता है। लोग कहते हैं हम बाहर इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे जी बदनामी हो जाएगी फैमिली की। बट आप सोचें इस उम्र में जब ये सब चीज़ें हो रही हैं वो बुज़ुर्गों के लिए कितनी डिफ़िकल्ट होती होंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो अभी लेट्स अंडरस्टैंड आई फ़ील मैंने जो पहले अभी आपको डायग्राम दिखाया इट शोज़ यू एवरीथिंग व्हाट एल्डर अब्यूज़ लुक लाइक बट फिर भी एक रिकैप के तौर पे
जो एल्डर अब्यूज़ है बेसिकली आपके फैमिली मेंबर्स और आपके केयर गिवर्स आपके साथ करते हैं, और स्पेशली जब आपके वल्नरेबल एज में, जब आपको एक्स्ट्रा केयर और रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, सो आपकी फैमिली आपको मिसट्रीट कर रही है। और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपकी इंजरीज़ नज़र आएँ और तभी आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है। हाँ, देयर आर सम केसेस जिसमें आपकी मार-पिटाई की जाती है, आपको धक्का दे दिया, आपको चुंडी मार दी, आपको थप्पड़ लगा दिया या गुस्से में आपकी तरफ कुछ फेंक दिया। बट इसके अलावा आई फील इमोशनल एस्पेक्ट जो बहुत बार लोग नहीं देख पाते, क्योंकि आप उनको ऐसा फील करवा रहे हो कि आप बोझ हो हमारे ऊपर। अम, आपका अब आपकी अब ज़िंदगी में बचा ही क्या है? आप हम जैसा हम कह रहे हैं आप वैसे कर लीजिए ना, बिकॉज़ आपने तो बहुत जी ली अपनी लाइफ़। सो ये एक इमोशनल अब्यूज़ का एक टाइप है। सोशल अब्यूज़ जिसमें आप जो बुज़ुर्ग हैं, ऑलरेडी उन्होंने लाइफ़ में बहुत लॉसेस देखे हैं। शायद एक एज पे आके जब आपकी कंपेनियनशिप भी नहीं रहती, आपके कुछ एक फ्रेंड्स होते हैं, या बहुत लोग मंदिर, गुरुद्वारे जाके अपने उनका जो सर्कल बना होता है, वो उसको एप्रिशिएट करते हैं। बट बुजुर्गों को ये बोला जाता है, क्या करना है आपने जाके? आपकी कौन-सा वहाँ पे किट्टी पार्टी चल रही है एंड ऑल। अ, उनकी जो सोशल कमिटमेंट्स हैं, हम उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड निग्लेक्ट सोशल के साथ-साथ उनकी फिज़िकल ज़रूरत, उनकी दवाई, उनको कोई भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है अगर उनकी, उसको डिले करना, इस तरीके के निग्लेक्ट भी जो है वो एल्डर अब्यूज़ का हिस्सा है। और इसे देख के तो मुझे जो एक मूवी का सीन याद आता है, आई फ़ील सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बागबान। उसमें बच्चे के शूज़ लेने के लिए उसके बेटे के पास पैसे होते हैं, बट बाप का चश्मा ठीक करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। सो दैट इज़ अगेन निग्लेक्ट, कि आप उसकी ज़रूरत को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। उसके बाद अबैंडनमेंट, जैसे कि बीजी के केस में उनके बच्चों ने सब कुछ अपने नाम किया और फिर बीजी को छोड़ दिया। और बीजी ने पूरी उम्र अपनी अपाहिज आश्रम में काटी। हालाँकि उनके बच्चे थे, उनके पास प्रॉपर्टी थी, वो बहुत वेल टू डू फैमिली में से थी, और बहुत सारे लोग बुज़ुर्गों को उनका इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको जानबूझ के किसी मेले में जाके छोड़ आते हैं ताकि वो वापस घर नहीं आ सकें। वो मतलब उनके लिए, शायद बच्चों के लिए वो लायबिलिटी बन जाते हैं, और इसलिए उनको अबैंडन कर दिया जाता है, और बच्चे ये नहीं सोचते कि उनको बुज़ुर्गों ने किस तरीके से केयर दी है। फाइनेंशियल और मटीरियल ऑलरेडी जैसे मैंने इसकी बात करी कि आपकी सेवा तभी होगी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है। आप मुझे क्या दोगे? और बच्चे बहुत ईज़िली कह देते हैं, आपने मेरे लिए किया भी क्या है? वो ये नहीं याद रखते कि बुजुर्गों ने उनको इतना कैपेबल बनाया कि आज वो कुछ बन पाए हैं, बट स्टिल जब हम उनको ये सब फीडबैक दे रहे हैं, बेसिकली हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनको अब्यूज़ कर रहे हैं। एंड आई फील हमने सेक्सुअल पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। ऑन टॉप ऑफ दैट सेल्फ निग्लेक्ट, आई फील ये वो एक्सट्रीम होती है जब हम किसी बुजुर्ग को इतना तंग कर देते हैं कि उसको जीने की अब इच्छा ही नहीं है। आपने बहुत सारे बुजुर्ग देखे होंगे, वो बस बैठे रहते हैं, खाना भी नहीं है, उनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई भी वर्थ नहीं है। सो ये एक वो एक्सटेंट चली जाती है। सो दिस इज़ हाउ एल्डर अब्यूज़ लुक्स लाइक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो अभी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बुजुर्गों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा, ये जो अब्यूज़ है वो ज़्यादा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी सोसाइटी में जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनको यूज़लेस समझते हैं लोग, उनको बर्डन की तरह देखा जाता है, बिकॉज़ उनको जब तक तो आप काम कर रहे हो, आप जॉब में हो, आप इनकम ला रहे हो, आप स्टिल आपको वर्थ मानी जाती है। बट एक एज में जब आप रिटायर्ड हो गए हो, पीपल फील यू आर जस्ट अ बर्डन ऑन अस। बट ये सोसाइटी का बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है, बिकॉज़ बर्डन के अलावा आई फील हमारे जो बुजुर्ग हैं, दे हैव लॉट ऑफ विज़डम, उनके पास एक्सपीरियंस है, विज़डम है, पर हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। सेकेंडली बिकॉज़ बुजुर्ग एक ओल्ड एज में आके उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के कारण दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्यू थिंग्स। बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो ड्राइविंग करना बंद कर देते हैं, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ के चलते कई बार उनको उनको अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए
I feel they are on more risk. एंड अनदर रीज़न इज़ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ जो अब्यूज़ होता है वो कोई और नहीं कर रहा होता, उनके घर का ही कोई मेंबर, कोई उनका केयर गिवर जो उनके सबसे क्लोज़ है उस टाइम पे, वही इंसान उनको अब्यूज़ कर रहा होता है। और अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो भी इंसान दूसरे को अब्यूज़ कर रहा होता है, कहीं न कहीं उसने भी मतलब घरेलू हिंसा अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं देखी है। जो मैंने आपको शुरू में पावर एंड कंट्रोल का व्हील दिखाया है, इट इट गोज़ इन अ सर्कल बिकॉज़ जो जनरेशंस में आपकी जो चीज़ आप देखते हैं, आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो अगर कहीं न कहीं फैमिली में ये पावर एंड कंट्रोल ऑलरेडी चलता आ रहा है, तो देयर आर चांसेस कि ओल्ड एज में आप उसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे और आप भी वही चीज़ करोगे। और एल्डर अब्यूज़ बुजुर्गों के ऊपर बहुत बहुत तरीके से इम्पैक्ट डालता है एंड उनमें से कुछ एक मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में ऑफ कोर्स उनकी ओवरऑल हेल्थ कि वो कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, एक के बाद एक इश्यू चली जा रहा है। और उसका मेन रीज़न है बिकॉज़ वो अब्यूज़ हो रहे हैं। उसके साथ-साथ इंजरीज़। बहुत बार जो बुज़ुर्ग है ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी कम होती है, पर उसके साथ अगर उनके साथ मार-पीट की जा रही है, उनको पुश कर दिया, ओल्ड एज में ऑलरेडी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनकी चोट हो गई या उनको डिसेबिलिटी बन गई, वो चीज़ें अब्यूज़ का ही एक रिज़ल्ट है। मेंटल हेल्थ, उनका जो डिप्रेशन बढ़ जाता है, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऑलरेडी इस एज में आते-आते लोगों की नींद कम हो जाती है। कुछ चीज़ें उनकी उनकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। ऑलरेडी उनकी मेंटल हेल्थ रिस्क पे होती है, पर अब्यूज़ के साथ-साथ ये चीज़ और बढ़ जाती है। उनकी सेल्फ एस्टीम, वो उनकी अपने बारे में अच्छी इमेज नहीं रहती। उनको लगता है मेरी अब ज़िंदगी में क्या पर्पज़ है? मेरी लाइफ़ के लिए अब कुछ नहीं बचा। मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं। मिसट्रस्ट, क्योंकि उनकी क्लोज़ेस्ट फैमिली जो है उनको मिसट्रीट कर रही होती है एंड दे फील लाइक जे मेरे बच्चे अपने नहीं बने ते मैं हुन होर किहदे कोलों मैं उम्मीद करा। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन बिलीफ जब आप अब्यूज़ को एक्सपीरियंस करते हो, आपका रिश्तों से, लोगों से जो ट्रस्ट है वो उठ जाता है। एंड अनदर इम्पैक्ट मोटिवेशन टू लिव बिकॉज़ उनको लगता है कि अब ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ा इम्पैक्ट एल्डर अब्यूज़ का होता है हमारी सोसाइटी पे बिकॉज़ हमारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं फैमिली में होता हुआ, वो इट्स नॉट दैट फार अवे एंड मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं। तो अगर आज आपकी फैमिली में आप एल्डर्स के साथ ये चीज़ कर रहे हो, सो इट्स नॉट दैट फार अवे कि ये चीज़ आपके ऊपर भी वापस आएगी और वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाएगी। सो व्हिच इज़ लाइक अनदर प्रॉब्लम टू डील विद। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। As I've already talked about elder abuse, but मैं ये कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनके होते ही अब्यूज़ और भी बढ़ जाता है। अगर फैमिली में कोई भी इंसान शराब या नशे का सेवन कर रहा है एंड उस टाइम पे ये एक एक्स्ट्रा रिस्क है बिकॉज़ नशे के बाद तो हमें अपनी होश नहीं रहती, तो हम किसी के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से उसको डील कर रहे हैं, वो तो वैसे ही पता नहीं लगेगा। एक्सटर्नल प्रेशर एंड स्पेशली ये आजकल हम एक दूसरे को देख के बहुत कुछ करते हैं। आई जस्ट हैव अ एग्जांपल फॉर दिस। मैं किसी क्लाइंट से डील कर रही थी और एक इंसान ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और उसने अपना बिजनेस अपने बेटे को दे दिया। बट जो दूसरा उसका कोई फ्रेंड था, जब उसको पता लगा कि उसके बाप ने सारा बिजनेस अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, उसने अपने पेरेंट्स को तंग करना शुरू कर दिया कि आपका फ्रेंड सर्कल में फलाना इंसान अपना सारा बिजनेस अपने बच्चों को दे रहा है, पर आप मुझे कुछ नहीं दे रहे। मुझे बस पैसा चाहिए, अदरवाइज़ मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और वो अकेला बच्चा था उन पेरेंट्स का और पेरेंट्स के लिए वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक तो ओल्ड एज
और ऊपर से जब आपका बच्चा आपको ये धमकी दे रहा है, या तो मुझे प्रॉपर्टी दे दो जी, नहीं तो मैं ये कर लूँगा, और वो किसी और के तरीके वजह से नहीं हो रहा था, वो सिर्फ़ क्योंकि हमने देखा कि किसी को ये चीज़ मिल गई और हमें ये ईज़िली चाहिए, तो हम प्रेशर में आके वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ एडिशनल रिस्क, अगर आपकी जॉब छूट गई है, फाइनेंशियल तंगी है, और क्राइसिस में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कोविड, जो पिछले 1 साल से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्राइसिस बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा अगर आप रीजनल एरिया में रहते हो, जहाँ पे आपका घर दूर-दराज़ है, आपके पड़ोसी आपको नहीं सुन सकते, आपके तक आना-जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो ये आप और ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हो, बिकॉज़ आप हेल्प के लिए रीच नहीं कर पाते। अलोंग विद दैट, अगर आपकी फैमिली में बुजुर्गों में या किसी और फैमिली मेंबर में डिसेबिलिटी है या कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, या यू नो आप अच्छा नहीं फील करते और आप अपनी भड़ास दूसरों पे निकाल रहे हैं, उसके कारण ये एल्डर अब्यूज का रिस्क और भी बढ़ जाता है। एंड लास्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, वीजा स्टेटस। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को जो जिनके बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, उनको ये कहते सुना है, जी हम मिट्टी जेल में आ गए हैं, क्योंकि वो अपने नाती पोतों के साथ रहना चाहते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है उनको ये चुकानी पड़ती है कि नाती पोतों के साथ टाइम बिताने के साथ वो एक जगह पे आके ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि उनको वहाँ की भाषा नहीं आती, उनको वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ नहीं आता, दे आर जस्ट ट्रैप्ड इन हाउस। और और बच्चे भी उनको, बिकॉज बच्चों की अपनी लाइफ चल रही है, बच्चे उनकी ज़रूरतें नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या चाहिए। सो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अब्यूज, बट हाँ, ये दिखता नहीं है ऑफ कोर्स, बट सिंस आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स यहाँ देखे हैं जो इस चीज़ को फील करते हैं, और उनके बच्चे इस चीज़ को रियलाइज भी नहीं करते कि हम उनको अब्यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी एज आई मेंशन कि कोविड या क्राइसिस के टाइम पे जो अब्यूज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें मैं कोविड इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है पिछला 1 साल पूरी दुनिया के लिए डिफिकल्ट था, पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल था वो हमारे बुजुर्गों के लिए था। और उसका मेन वजह कि हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग को सॉरी फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग बोल के मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। हमने ये शो करना शुरू कर दिया कि जी ये एल्डर्स को तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप कहीं बाहर नहीं जाएँ, आप घर पे ही रहें। हमने उनको दूसरों से तो आइसोलेट कर दिया, पर हमने अपने साथ भी उनको कनेक्ट नहीं होने दिया। सो वो जो मैनिपुलेशन है, आई फील वो एल्डरली लोगों के लिए एक और बड़ा रिस्क बन गया, बिकॉज़ वो और ज़्यादा आइसोलेट हो गए। एंड उसके साथ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके लिए कुछ कुछ रेगुलर सर्विसेज उनकी हेल्थ के लिए एक रिक्वायरमेंट थी। वो लोग फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाए, योगा क्लासेस नहीं कर पाए, लाफ्टर क्लब जो है उसमें नहीं जा पाए, सैर पे नहीं जा पाए। वो सब चीज़ें नहीं होने के कारण, और घर में बंद हो गए, और बच्चे तो अपनी लाइफ में हर कोई अपने लिए कंप्लेन कर रहा है कि हाँ, कोविड के टाइम पे मेरा सोशल नेटवर्क टूट गया, मेरी पढ़ाई में ये लॉस हो गया, मेरे बिजनेस में ये लॉस हो गया। बट जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका क्या लॉस हुआ, उनके इमोशनली वो कितने वनरेबल हो गए, इस पे कोई किसी ने भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ध्यान दे पाए। एंड डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ हुआ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते। यंगस्टर्स के साथ एक बहुत जो अच्छी चीज़ है, दे कैन अडेप्ट इनटू टेक्नोलॉजी वेरी वेल, और बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल होती है। बट आई फील बहुत ऐसी कम फैमिलीज हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखा के उनको कनेक्ट करने का, उनके दोस्तों या उनका जो सपोर्ट सर्कल है उसके साथ कनेक्ट करने का। बहुत सारे लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। एंड आई फील आई ऑलरेडी सेड कि सब लोग अपनी अपनी नीड्स को कमिटमेंट देते हैं, अपनी प्रायोरिटाइज करते हैं, बट जो बुजुर्गों की नीड्स हैं उसको बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब आप
आपका क्या कौन सा बिजनेस मिस हो रहा है, आपके कौन से फ्रेंड्स आपको याद कर रहे हैं, हम ऐसे बोल के उनको और ज्यादा हेल्पलेस और लाचार फील करवाते हैं। एंड जैसे हम लोगों के लिए कोविड जो था एक बिलोंगिंगनेस हम सब लोगों ने मिस करी, क्योंकि हम अपने घरों में हैं, हम कहीं आ जा नहीं रहे, मूवीज नहीं देखने जा रहे, घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पा रहे। और जो एल्डर्स हैं वो तो घर में सबके होते हुए भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई इंसान घर में अपने अपने रूम में टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, और बिकॉज उनको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती, तो नोबडी इज कनेक्टिंग विद एल्डरली पीपल्स के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आई द प्रीवियस वन प्लीज। Oh, sorry, no, this one. Next one, sorry. Yeah. So now I'm going to talk about क्यों एल्डर लोग जो हैं वो इस अब्यूज के सर्कल को ब्रेक नहीं करते, क्या क्या चीजें उनको स्टॉप करती हैं। सबसे बड़ी बात गिल्ट और शेम, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बोला, जो जो भी लोग उनको अब्यूज कर रहे हैं वो उनके अपने बच्चे, उनकी अपनी फैमिली हैं। उनको ये लगता है अगर हम ये चीज बताएंगे लोग हमारे फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरी परवरिश के बारे में क्या सोचेंगे। तो वो जो फीलिंग है गिल्ट ऑफ शेम की, वो बुजुर्गों को रोकती है इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। और फेयर ऑफ रिटेलिटेशन, उनको लगता है कि अगर मैं ये चीज किसी को बता दूंगा तो हो सकता है मेरे बच्चे और मुझे ज्यादा तंग करें, क्योंकि उनको ये लगेगा मैंने उनके लिए शेम क्रिएट करी है। बच्चे शायद मुझे कहीं और छोड़ के भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं लाइबिलिटी बन गया हूँ या बन गई हूँ। एंड ऑलरेडी बिकॉज ओल्ड एज तक आते आते बुजुर्गों ने बहुत चीजें लूज करी होती हैं, और उनको ये लगता है कि यही तो मेरे 2-4 रिश्ते हैं, तो क्या हो गया, मुझे ऐसा बच्चे ट्रीट कर रहे हैं, मैं अगर इनके खिलाफ अगर कुछ करूँगा तो मैं शायद ये भी रिश्ते खो दूँगा। और स्पेशली उनकी अगर मेंटल और फिजिकल एबिलिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, सो उसके कारण भी उनको पता नहीं होता मैं क्या कर सकता हूँ। ना तो उनको अपने राइट्स बहुत ज़्यादा पता होते हैं, उनको सपोर्ट नेटवर्क नहीं पता होता कि मुझे कहाँ से हेल्प मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें बुजुर्गों को स्टॉप करती हैं हेल्प लेने से। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी बात, जब हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है इस तरीके से बिहेव करती है, ये आपके साथ ही ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे तो हर किसी के साथ हो रहा है। जब हम उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं, बुजुर्ग भी उस चीज को अब्यूज के तरीके से नहीं देख पाते, उनको लगता है कि नहीं ये एजिंग का एक हिस्सा है, हालांकि इट्स नॉट राइट, बट दे फील इन दैट वे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल ऑफ वायलेंस। जैसे कि मैंने पहले बोला कि बुजुर्गों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है हेल्प मांगना, और उसमें उसमें से भी सडनली अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने लिए सेफ्टी प्लानिंग करना। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि कभी भी अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके फाइनेंसेस है, उसका कंट्रोल नहीं दीजिए। अपने हाथ में थोड़ी बहुत चीज़ों का कंट्रोल अपने पास रखें, और अगर आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके थ्रू अप्रोच करूँगा। मेरे साथ अगर जिस टाइम पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे कौन सपोर्ट कर सकता है विद इन दैट टाइम, जब तक अथॉरिटीज़ मेरे पास नहीं आती। एंड सेकंड थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉक टू समवन, बिकॉज़ बुजुर्ग हमेशा ये फील करते हैं कि अगर मैं किसी से बात करूंगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ ये बिहेव कर रहे हैं, अ, तो मेरी बदनामी होगी। वो बहुत एक गलत अप्रोच है। आई फील आपको किसी ना किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से बात करनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, प्लीज सेज एडवाइस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड वी विल गाइड यू व्हाट टू डू। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. And other than that, you need to stand up for self. I know बुजुर्ग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे लिए और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बट हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए, फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट। एक बार आप खड़े हो गए, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, बिकॉज
ऑफ कोर्स अगर आप हेल्प मांगोगे तभी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. एंड next one is like, if you are not capable to take help, maybe you need to let other people to help you. Next slide please. And this is most important because I feel मैंने already बोला है कि society बुजुर्गों को किस तरीके से देखती है. ये जो picture है it stands with me because इसमें जितने भी आप bold point देखेंगे, poor, forgetful, vulnerable, grumpy, you know, बुजुर्गों को mostly इस तरीके से देखा जाता है. But there are many words जो बुजुर्गों की value को reflect करते हैं, like experienced, wisdom, caring, हैप्पी, सोसाइटी. सो इन सारी चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए रादर देन हम उनकी वनरेबिलिटीज को गिने. सो फाइनल पॉइंट इज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. I feel I've already captured enough signs of elderly abuse, but still these are some of the signs. If you see, अगर आप आसपास में किसी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होते हुए देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बुजुर्गों की केयर नहीं की जा रही, वो हमेशा डरे हुए रह रहे हैं, कोई इंसान उनको अकेला नहीं छोड़ता किसी भी टाइम पे, और एकदम से फाइनेंशियल चेंजेस अगर उनकी लाइफ में आ गए, डेफिनेटली दीज आर साइंस कि उनके साथ अब्यूज हो रहा है. एंड मे बी यू हैव टू ट्राई टू सपोर्ट देम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So now the final part is how we can protect their rights. So सबसे पहले, if you know someone who is going through with this, you need to stay contact with them. उनके साथ एक ongoing communication रखिए, किसी भी तरीके से उनसे मिलते जुलते रहिए ताकि आपको उनकी कंडीशन पता लगे कि कहीं अब्यूज और ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, उनको किसी रिस्क में तो वो नहीं है. ये चीज आप तभी कर सकते हैं अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे. एंड अनदर थिंग इज, अगर बुजुर्ग खुद इस चीज अपने आप के लिए हेल्प ढूंढने में सक्षम नहीं है, मे बी आप उनके लिए हेल्प ढूंढिए, आप उनके लिए रिसर्च करिए कि उनको कहाँ से हेल्प मिल सकती है. एंड आई फील एसएसपी मैम ने ऑलरेडी हेल्पलाइन मेंशन करी है, आप उनको ये बता सकते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, या आप उनके बिहाफ पे रिपोर्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके साथ ऐसा अब्यूज हो रहा है, उनके साथ एक सेफ्टी कोड रखिए कि अगर वो पुलिस को खुद रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, तो आपका कोई ऐसा कोड जो अब्यूजर को पता नहीं लगे कि आपका ये कोड है, पर वो आप तक ये कन्वे कर पाए कि वो ट्रबल में है. अब जैसे इसका एक एग्जांपल मुझे याद है, somebody just said कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे पिज्जा खाना है, इट मीन्स कि मैं रिस्क में फील कर रहा हूँ, मुझे इसमें हेल्प चाहिए. सो ऐसा सा कोई कोड आप उनके साथ तय कर सकते हैं. एंड देन अगेन, रिपोर्ट टू अथॉरिटीज. आई फील 181 इज द बेस्ट नंबर टू कॉल. एंड along with that, जब आप ऐसा कर रहे हैं, maybe you have to also be ready to provide them legal and medical support, because बहुत बार जब ऐसी सी सिचुएशन होती है, जो रिस्क है वो बढ़ जाता है थोड़ी देर के लिए, और उस टाइम पे अगर आप उन एल्डरली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर सपोर्टिव. आपको थोड़ी सी चीजें ऑफ ट्रैक करनी पड़ेंगी उनके लिए शायद मेडिकल अरेंज करना पड़ेगा. और फाइनल थिंग इज, अगर आप उनके लिए कोई केयर अरेंजमेंट भी ढूंढ रहे हैं, यू हैव टू बी रियली केयरफुल, बिकॉज एज आई मेंशन कि जो केयर गिवर्स हैं वो भी अब्यूजर्स बन सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू, एंड यू कैन हेल्प to protect their rights. And I feel now I will hand over to SSP ma'am. I feel she might have few more things to add into that, how you can report and help others to break this cycle. Thank you ma'am. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮੀਰਾ ਜੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ.
ਜੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 181 ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲਡਰਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਸਮੈਰਿਟਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਟੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਰ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਟ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਟਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਦ ਚੈਲੰਜ ਆਫ ਕੀਪਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨਡੋਰਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈ ਫॉर ਦ ਐਲਡਰਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਐਸੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿੰਕਲਸ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਗੋ ਵੇਅਰ ਸਮਾਈਲਸ ਹੈਵ ਬਿਨ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਓਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਫਰਮ ਅ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਫਰਮ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੱਲਵੀ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹਰ ਸਟੱਡੀ, ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਐਂਡ ਏਜ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਏਜਿੰਗ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਅਪਬੀਟ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈਲ ਕੁਇਕਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਪੱਲਵੀ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਐਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਪੱਲਵੀ ਖੰਨਾ। थैंक यू सो मच। ये वेबिनार में बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें सुनने को मिली हैं आज, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू SSP Kavardeep Kaur and to Sumira for sharing such useful information with all of us, and इससे हमें ये पता लगेगा कि हमने अपने बुज़ुर्गों की राखी कैसे करनी है। सो थैंक्स अ लॉट। मैं आज मैं पढ़ रही थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि किसी भी समाज की जो मापतोल है ना, वो इसी बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जितना हम बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये एक सोशल एक बहुत बड़ा बेनिफिट सारे लोगों ਨੂੰ मिलता है, क्योंकि इसमें बच्चों को भी बेनिफिट मिलता है, सबको बेनिफिट मिलता है। एक बहुत विन विन सिचुएशन है। जो हम देख रहे हैं कि जो आजकल समाज है वो इस तरफ बढ़ रहा है कि हर कोई अकेला महसूस कर रहा है, हर कोई अकेलेपन का शिकार है। तो हम ये क्यों ना हम ऐसी संस्थाएं बनाएं जिसमें अगर किसी घर में बच्चे अकेले हैं और किसी घर में बुजुर्ग अकेले हैं, तो क्यों ना हम उनका मिलाप किसी तरह से करवाएं, ताकि दोनों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैं मानती हूँ कि जो लीगल एंगल है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सोशल एंगल और एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है जिसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? देखा गया है कि 1/3 ऑफ एल्डरली, यानी हर ये 2021 की रिपोर्ट है, डाउन टू अर्थ मैगजीन ने ये आर्टिकल निकाला है
कि 1/3 पॉपुलेशन यानी 30% जो हमारे बुजुर्ग हैं वो डिप्रेशन के मरीज हैं। तो डिप्रेशन तो लाजमी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मानसिकता है वो ना केवल सारे लोगों में है, वो इवन जो बुजुर्ग हैं उनमें भी है। क्योंकि अगर जो बुजुर्ग है, अगर वो इस तरह सोच, उनकी मानसिकता होगी कि हम अब बुजुर्ग हो गए, अब हम प्रोडक्टिव नहीं रहे, अब हम यूजफुल नहीं रहे, अब हम नौकरी नहीं करते, हम पैसे नहीं कमाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू नहीं है। अगर हम ये खुद सोच रखेंगे तो फिर हम देखते हैं कि जो इस मानसिकता के कारण डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस उम्र में देखने को मिलती है। जबकि मैं आप सबको बताऊंगी, जैसे इंद्रजीत जी ने कहा था कि मेरी रिसर्च और स्टडी जो है वो हैप्पीनेस के क्षेत्र में हो रही है, तो मैं ये बहुत खुशखबरी आप सबको देना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस का एक यू कर्व है। और ये यू कर्व ये है कि 20 साल से उम्र से 25 साल की उम्र से पहले और उसके बाद 60, 65, 70 साल की उम्र के बाद हैप्पीनेस लेवल सेम होते हैं। तो आप लोग बहुत हैरान होंगे ये सुनकर, लेकिन ये बात प्रूव्ड है, ये बात रिसर्च्ड है, आप लोग खुद इस बात को चेक कर सकते हैं, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की गई है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस है, जैसे आजकल हम लोग जो 50s में हैं, 40s में हैं, हम मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ हमारे बच्चे सेटल नहीं हैं और दूसरी तरफ हम बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ये सैंडविच जनरेशन है, जिसको जो ये 40s, 50s, 60s की उम्र होती है, 60s के एंड तक जो है ये जिम्मेदारियां खत्म होती है। जिम्मेदारियां जब खत्म होती है उसके बाद अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से आप लोग हर किसी को अपनी ज़िंदगी के लिए प्लानिंग ये करनी चाहिए कि हम जो हमने काम नहीं करे, जो हमारे पास समय नहीं था, हमारे बच्चे छोटे थे, हम सबकी सेवा कर रहे थे, तो अब ये समय हमारा है। तो हमें अपने लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमने पहले नहीं किया। तो कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? तो जब मैंने सोचा कि ऐसे कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो दशा है वो खुद बदली है, तो मेरे दिमाग में नाम आया फौजा सिंह जी का। आप सब जानते होंगे इनको। ही इज़ अ मैराथनर एंड ही इज़ अ सेंटेनेरियन नाउ। 100 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई है और वो अभी भी भागते हैं। उन्होंने बहुत सारे मैराथन्स, ही स्टार्टेड रनिंग एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में तो इन्होंने रनिंग करना शुरू करा था और इन्होंने अलग अलग इंटरनेशनल मैराथन्स में भाग लिया। एंड ये बहुत एक इंस्पिरेशनल फिगर है हम सब के लिए कि अगर हम चाहें और अगर हम मानसिकता सही रखें तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? So aging need not be a sad process. Aging is not बुजुर्ग होना कोई बीमारी नहीं है, बुजुर्ग होना कोई श्राप नहीं है। बुजुर्ग होना ये दिखाता है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर हम इस उम्र तक पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है। जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी उम्र में कोविड की वजह से और परेशानियों की वजह से लोगों की बहुत अनफॉर्चुनेट हम लोग देख रहे हैं कि मृत्यु हो रही है। तो अगर हम इस उम्र तक पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है और हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए, इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हम बुजुर्ग हैं और हमारे में एक्सपीरियंस है, विजडम है और जो हम सबके साथ बांट सकते हैं। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो हम खुद अपने हाथ में ले सकते हैं अगर हम ये सोचें कि हमने पॉजिटिव रहना है और अच्छे ढंग के साथ सारे जनरेशन्स आपस में मिलजुल कर प्यार से रहे, तभी जो है हमारी पूरी सोसाइटी हार्मनी में आएगी। With these words, I would like to end today's seminar and my words at least, and over to Indrajit. Yeah, thank you so much, Pallavi. I think it's so true. I think your entire presentation can be summarized that it's not about how long, but how. किस तरह से हम जिंदगी को जी रहे हैं और ये करेंसी ऑफ ब्रेथ्स, सांसों की ये करेंसी हम कैसे खर्च करते हैं. So certainly you've ended on a very positive note,
एंड आई थिंक इट रिमाइंड्स मी जापानीज आर अ वेरी सक्सेसफुल कम्युनिटी. उनका कल्चर इसलिए बहुत सक्सेसफुल है कि वहाँ अगर चीनी का बर्तन भी टूटता है तो पुराना होता है अक्सर, तो उसे गोल्ड से प्लेट करके उस क्रैक को भरा जाता है और उस बर्तन को और बहुमूल्य माना जाता है. This is how they treat their elderly also, and that is why we see there are so many centenarians in the Japanese society, and that's why they are such a wonderful culture in a society, because जो society अपने elderly की संभाल करनी सीख लेती है वो कामयाब है. That's a successful society, and I think we are going through that process. और हम ये उम्मीद करते हैं, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ SSP ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੁਮੀਰਾ ਐਂਡ ਚੀਫ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਲਵੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਟੀਮ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਵੱਲੋਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿ it's a wonderful thing, ਸਾਂਝ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ. it's an amazing initiative. ਨਾਲ ਹੀ ADGP ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ, ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ. ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਹੈਪੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ.